So children, today we will learn a poem from Unit 6, Mr. Nobody, Class 2 English. Children, has it happened? You have done some mischief at home, and when your mother asked about it, you said that I don't know who did that mischief. क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि आपने कुछ शरारत की हो और जब आपकी मम्मी ने आपसे पूछा कि यह किसने किया तो आपका आंसर होता है पता नहीं किसने किया, मैं नहीं जानता। क्या ऐसा है? तो यह पोयम भी मिस्टर नोबडी के बारे में है। मिस्टर नोबडी मीन्स कोई नहीं, और ये भी काफ़ी शरारतें करता है। ठीक है, तो दिस पोयम इज़ our poem is Mr. Nobody. Okay, this poem is about a little man. This is a little man named Mr. Nobody. यही है Mr. Nobody. This poem is about a little man named Mr. Nobody. The poet believes that he is the cause of every mischief done in everybody's house. The poet further tells that nobody ever saw this little man, but he is sure that he is the only mischief maker. इसमें पोएट को यह विश्वास है कि ये सभी के घरों में ये मिस्टर नोबडी ही हैं जो शरारतें करते हैं और इन्हें किसी ने नहीं देखा है, और ये पूरी तरह से श्योर हैं कि सारी शरारतों का जड़ यह मिस्टर नोबडी ही है। ओके, first we will read this poem. Okay, let's start. I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. Okay, children? Now let's recite this poem called Mr. Nobody. I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. I know a funny little man as quiet as a mouse who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. I hope you all have enjoyed the recitation of the poem. Okay, now we will learn some new words. Let's start. First word is quiet. Q-U-I-E-T, quiet, meaning without making any noise. Shant. Next word is mischief. M-I-S-C-H-I-E-F, mischief, meaning trouble caused by someone. Shararat. Next word is nobody. N-O-B-O-D-Y, nobody. Nobody means no one, मतलब कोई नहीं. Next word is everybody. E-V-E-R-Y, every, B-O-D-Y, body. Everybody means every person, सभी लोग. Next word is agree. A-G-R-E-E, agree, meaning having a same opinion, सहमत होना. Now we will learn some opposites words. Okay, quiet, opposite noisy.
क्वाइट मीन्स शांत, नॉइजी मतलब शोरगुल। क्वाइट, क्वाइट, नॉइजी। नोबडी अपोजिट एवरीबडी। नोबडी मीन्स कोई नहीं, एवरीबडी मीन्स सभी। एग्री अपोजिट डिसएग्री, डिसएग्री सहमत, डिसएग्री मतलब असहमत। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन। आर यू रेडी टू आंसर? लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज मिस्टर नोबडी? Mr. Nobody was a funny little man. Question number 2, has anyone ever seen him? Answer, no, nobody has ever seen him. Question number 3, is there a Mr. Nobody in your house? Answer, yes, there is a Mr. Nobody in my house. Let's share. Sometimes you want to look and find things for yourself. Tick those that you did. Tell your friends. बच्चों, आपने कभी अपने लिए कुछ आपने ढूंढा होगा, खोजा होगा? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपने किया है वहाँ टिक मार्क करेंगे। Put a tick mark that you have done for yourself. Okay? नंबर 1, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड। अगर आपने घड़ी को देखने की कोशिश किया होगा कि वो टिक टिक क्यों करता है, अगर आपने ऐसे किया है तो इसे टिक मार्क करेंगे, अदरवाइज आप क्रॉस कर देंगे। ठीक है। सेकंड, आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। अगर आपने स्टार्स देखने के लिए आप रात में घर से अगर बाहर निकले होंगे, छत पर गए होंगे, तो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड वन, आई क्लाइम्ड अ ट्री टू लुक इनटू अ नेस्ट। क्या आपने कभी पेड़ पर चढ़कर नेस्ट को देखा है? अगर आपने देखा है तो उसे टिक करेंगे, अदरवाइज क्रॉस करेंगे। ठीक। आई क्लाइम्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट। क्या आपने कभी स्टूल लगा के बिस्किट खोजा है कि मम्मी ने कहाँ रखा है? आई थॉट सम ऑफ यू माइट हैव डन दिस। एम आई राइट? आप में से ज़रूर कुछ लोगों ने ऐसा किया होगा, तो आप यहाँ टिक मार्क कर देंगे। ओके। से अलाउड एंड सर्कल द राइमिंग वर्ड्स। चिल्ड्रेन, यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हैं। आप इन सेंटेंस को पहले आप रीड करेंगे, उसके बाद आप इसमें से राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ माउस रैन इनटू द हाउस। माउस, हाउस, इसको सर्किल कर देना है। ठीक है। 2, आई कैन सी द लिटिल बी। सी बी। ओके। थर्ड, दैट वाज अ फैट कैट। फैट कैट, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। गिव मी अ हैंडकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ। हैंडकरचीफ एंड मिसचीफ राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, लेट्स राइट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ A-E-I-O-U। A-E-I-O-U क्या है? ये वॉवेल्स हैं, वॉवेल्स। ठीक है, आप जानते होंगे। अब यहाँ पर जो वर्ड हैं, इसमें जहाँ भी ब्लैंक है, खाली स्थान है, वहाँ पर आपको इन वॉवेल्स को प्लेस करना है। ठीक है। फर्स्ट वी विल रीड HE-D, तो यहाँ ए आएगा। HEAD, हेड। -RMS, arms. Okay. Third is legs. Fourth number HEAR, here.
और DRESS ड्रेस. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. Add no, some, every to the word body. यहाँ पर body लगा हुआ है, इसमें आप ऐड करेंगे नो, सम और एवरी ऐड करके एक न्यू वर्ड बनाना है. यू हैव टू मेक अ न्यू वर्ड बाय एडिंग नो, सम एंड एवरी. ओके. नोबडी, समबडी, एवरीबडी. सीमा wrote her father's name like this, Mr. Dinesh Dikshit. Ram wrote her mother's name like this, Mrs. Sneha Ramdas. अपने पापा के नाम के आगे मिस्टर लगाया है और मम्मी के नाम के आगे मिसेस, MRS, MR डॉट मिस्टर, और मम्मी के नाम के आगे MRS मिसेस. राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड. यहाँ पर आप अपने पापा का नाम मिस्टर लिखकर आप अपने पापा का नाम लिख सकते हैं. राइट योर मदर्स नेम एज राम डिड. जैसे राम ने अपनी मम्मी का नाम लिखा है मिसेस लगाकर, तो स्टार्टिंग करेंगे मिसेस लगा और फिर अपनी मम्मी का नाम लिखेंगे. यूज़ मिस्टर एंड मिसेस टू राइट मोर नेम्स यू नो. और आपको कुछ और भी नाम मिस्टर और मिसेस लगाकर आपको लिखना है नाम आपके फैमिली मेम्बर्स में जो होंगे. ठीक है. चिल्ड्रन, देयर इज अनदर पोएम फॉर यू कॉल्ड द जिगजैग बॉय. Would you like to know what a zigzag boy does? ये zigzag boy क्या करता था, क्या आप जानना चाहेंगे? zigzag, zigzag means टेढ़ी मेढ़ी लकीर. देखिए ये zigzag लाइन्स है और ये है स्ट्रेट लाइन. कैन यू मेक zigzag लाइन्स? क्या आप जिग जैग लाइन्स बना सकते हैं? देखिए ये जिग जैग लाइन्स है और ये है स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर. सीधी लकीर को स्ट्रेट लाइन, और जो टेढ़ी मेढ़ी लकीर होती हैं लकीरें उनको कहते हैं जिग जैग. सी हाउ द जिग जैग बॉय रन्स. तो अब हमें इस पोएम, लेट्स रिसाइट दिस पोएम. Okay, the zigzag boy. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. I know a little zigzag boy who goes this way and that. He never knows just where he puts his coat or shoes or hat. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. If you are not a zigzag child, you will have no cause to say that you forgot, for you will know where things are put away. Okay, children? Now practice time. Children, we will learn how to write cursive handwriting. Let's practice and learn. Okay? A Z R E E, agree. M O U S E, mouse. B R E A K, break. P
L-A-T-E, प्लेट। ओके, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।